اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ آج ہم پھر بات کریں گے مقام قلب یعنی کہ دل کی، اور اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ آج میں اس چیز پر بات کروں گا کہ حضرت انسان کا جو مرتبہ خدائے بزرگ و برتر نے بنایا، اللہ پاک نے اس کو مسجود ملائک بنایا، وَكَرَّمْنَا لِبَنِي آدم، عزت کا ہار اس کے گلے میں پہنایا۔ حضرت انسان کو لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اپنی بہترین تخلیق فرمایا، خوبصورت سانچوں میں ڈھال کے فرمایا۔ حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر اپنا جانشین اور نائب مقرر کیا۔ اب یہ اللہ کا نائب حضرت انسان، جس کے دل کو اپنا حرم خاص قرار دیا، جس انسان کو اشرف المخلوقات فرمایا، جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھی بنایا اور انبیاء کا سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی انسانی لبادے میں اپنے محبوب کو بھی بھیجا۔ یہ حضرت انسان جو مسجود ملائکہ ہے، معلم الملائکہ ہے، یہ حضرت انسان کہ جو خدا کا کہہ لیں شاہکار اعظم ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سب کو بار بار یہی بتاتا ہوں کہ ہم جو اولیاء اللہ کا تصوف اور اولیاء اللہ کا سلسلہ اور اولیاء اللہ کا پیغام لوگوں کو دے رہے ہیں، خصوصاً ہمارے پیر و مرشد حضرت سخی سلطان العارفین برہان الواصلین مقتدائے کاملین فنافذات عین یاہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت سلطان باہو کا جو پیغام ہم عام کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کا حقیقی مشن کیا ہے۔ تو سنیے، آج پھر ہم اللہ کے ولیوں کا جو مشن ہے وہ قرآن اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے، سنیے۔ پھر میں ایک بار کہہ دوں، تنقید کرنے سے پہلے میرے بھائیوں، اعتراض کرنے سے پہلے، نقص نکالنے سے پہلے یاد رکھنا کہ حضرت انسان کا آئینہ ہے۔ اور دوسری بات، تنقید تب کی جاتی ہے جب بندے خود میں وہ عیب موجود نہ ہو۔ اب ہم اولیاء اللہ پر تنقید اس وجہ سے کریں کہ ہمیں ان کی باتوں کی اور کرامات کی سمجھ نہیں آئی، تو میرے بھائیوں، اولیاء اللہ کی باتیں سمجھنے کے لیے اولیاء اللہ بننا پڑتا ہے۔ اب کوئی مڈل کلاس بندہ ایم اے اکنامکس کو کیسے پڑھے گا؟ اب ایک پنجابی دیہاتی بندہ انگلش کو کیسے پڑھے گا؟ جب تک وہ اس منزل پر پہنچے گا نہیں، اس کلاس پر پہنچے گا نہیں۔ اسی طرح راہ سلوک یعنی راہ عشق میں بھی ایسی منزلیں ہیں جس کو علماء نے، اولیاء نے شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، فقر، مقام عشق کا ہے۔ تو ایسی منازل ہے کہ جو حضرت انسان کی عقل سے بھی بالاتر ہے۔ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، ارے تو شہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ تجھے سمجھایا کہ تو کن باتوں میں جھگڑ رہا ہے، ارے تیری تو پرواز شہین کی طرح ہے۔ تجھے تو اللہ کے اسم ذات میں پرواز کرنی چاہیے، تجھے تو اللہ کی معرفت میں پرواز کرنی چاہیے، تجھے تو اپنی پہچان اور اپنی تحقیق کرنی چاہیے۔ تو ابھی بحث و مباحثے سے باز نہیں آیا، تو ابھی لوگوں کی تنقید سے باز نہیں آیا، تو ابھی لوگوں سے نقص نکالنے سے باز نہیں آتا۔ اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، جب بندے کی عقل مکمل ہو جائے نا، بندہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اب خاموشی رسول اللہ کا فرمان ہے، ہزار درجہ بہتر ہے، خاموشی کا عبادت ہے۔
यानी किस चीज की खामोशी? जब अल्लाह की पहचान होने लग जाए तो खामोशी बेहतर है। हर एक को ना बताएं, उसके लिए खामोशी इख्तियार करें। और नुक्स ऐब किसी से ना निकालें जब तक खुद उस ऐब से पाक ना हो जाए। उसके बाद भी आपको और मुझे हक नहीं है हम अपने आप को ऐसा करें कि लोग हमें देखकर वो लोग हमसे कुछ सीख लें। आइए हम बात करते हैं फिर मुकामे कल्ब पर। अल्लाह कुरान में फरमाता है जन्नत में जाएंगे मगर कल्बे सलीम, सलामती वाले दिल। और दिल के बारे में आमीना के लाल जनाबे अहमद मुस्तफा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत इंसान के अंदर एक ऐसा टुकड़ा है, अगर वो टुकड़ा पाक है, साफ है, तो पूरा हजरत इंसान पाक और साफ है। अगर वो टुकड़ा पलीत है, उसमें बुग़्ज़ है, हसद है, दुनियादारी है, तो बंदे का पूरा वजूद ही खराब है। एक टुकड़ा ऐसा है, अगर वो ठीक है। साहबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, वो कौन सा टुकड़ा है? तो कमली वाले ने फरमाया, उसका नाम दिल है। उसका नाम दिल है, कल्ब है। सिहाबा, अपने कल्ब को पाक करो, दिल को साफ करो। दिल को साफ करना मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी हदीस है, कभी इस पर भी गौर व फिक्र किया करें। हजूर पाक की हदीस मुबारक है कि दिल को पाक करना पूरे वजूद को पाक करना है, दिल को साफ करना पूरा वजूद कबूल है। अगर दिल पलीत है तो इबादत भी कबूल नहीं है। अगर दिल पलीत है, दिल में बुग़्ज़ है, हसद है, कीना है, कदूरत है, औलिया अल्लाह की बेअदबी है, दिल में बुग़्ज़ है औलिया का, अहले बैत का, पंजतन पाक का, तो ज़ाहिरी इबादत किसी काम नहीं आएगी। दिल को पाक करने के लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया अपने दिलों को पाक करें। या रसूलुल्लाह, दिल कैसे पाक होंगे? फरमाया उज़्कुरुल्लाह, अल्लाह को याद करो। अब अल्लाह को याद करो। उलमा औलिया कहते हैं अल्लाह को याद करने के दो तरीके हैं। एक ऊंची आवाज में जिक्र बिल जहर औलिया ने कहा, एक दिल में याद करने के, उसको इसमें अल्लाह ज़ात नक्श करने का तरीका कहा, जो हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि याद का ये भी तरीका है कि अपने जहन पर, अपने दिल पर अल्लाह के नौरानी इसम को खुदा किया जाए, मरकूम किया जाए, नक्श किया जाए, ताकि तेरा दिल गैर खुदा से पाक हो जाए, वो इसमें बामुसम्मा हो जाए, तेरा दिल चमक उठे, तेरा दिल पाक हो जाए। और जब दिल में इसमें अल्लाह ज़ात का नूर आता है ना, अल्लाह का जो इसमें अल्लाह ज़ात है, जो सुल्तान बाहू फरमाते हैं दिलों पर नक्श करो, जब ये दिल में आना शुरू होता है ना, तो गैर अल्लाह दिल से दूर होना शुरू हो जाते हैं। दुनियादारी निकलना शुरू हो, झूठ, गीबत, चुगलखोरी, बेअदबी, गुस्ताखी, हर चीज दिल से दफा दूर हो जाती है और बंदे का दिल पाक और साफ हो जाता है। इसको अल्लामा इकबाल ने कहा था, अपने ही मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी। और हजरत इंसान अपनी पहचान तो कर ले। अरे कभी तू किसी पर तनकीद करता है, कभी किसी पर एतराज करता है, अपनी घर की खबर नहीं है और एतराज हम औलिया और अंबिया पर करें। और मेरे भाई, अपनी पहचान कर। तेरे अंदर एक ऐसा टुकड़ा है जो अल्लाह का हर में खास है, उसको दिल कहा जाता है। दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिला दिया जाने हूं। तेरे दिल के जहान को आबाद करने का रसूल अल्लाह ने हुक्म दिया है। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह कहां रहता है? आसमान पर, अर्श पे। फरमाए नहीं, मदीना में नहीं, मक्का में नहीं, कहां? फरमाया इतना बड़ा है, अल्लाहु अकबर कबीरा, कहीं नहीं समा सकता। साहबी ने अर्ज की, आका इतना बड़ा अल्लाह कहां समाता है? फरमाया बंदे मोमन के दिल में समा सकता है। अब जिस दिल को तू छोटा सा टुकड़ा समझ रहा है, रसूल अल्लाह फरमाते हैं इतना बड़ा अल्लाह जो 18,000 जहानों में ना समा सके, वो बंदे मोमन के कल्ब में समा जाता है। अरे दिल की खबर ले, किसी अहले अल्लाह के पास जा, अहले दिल के पास आ, ताकि तेरा दिल हर में खास हो जाए, अल्लाह का अर्श बन जाए। जैसा कि हदीस नबवी है, कुलूबल मोमिनीना अर्श अल्लाह ताला, मोमिन का दिल अल्लाह का तख्त है, अल्लाह का अर्श है। अब अर्श घर सजा कर बैठे हैं, मगर अर्श पर अर्श वाला नजर नहीं आता। अर्श पर अल्लाह को हमने ना बिठाया, यानी उस मुकाम पर इसमें जात को ना लगाया।
जिसका घर था उसको घर में आने न दिया, दुनिया को घर में बैठा लिया, लोगों को बेअदबी पर ले आए, गुस्ताखियों पर ले आए, फिरकावारियत में लगा दिया, एक दूसरे को काफर काफर करने में जिंदगी बसर कर रहे हैं। पर कुर्बान जाए अल्लाह के वलियों पर कि अल्लाह के वलियों ने हमें यह दर्स दिया। हजरत गौसे आजम ने, सुल्तान बाहू ने, फकीर नूर मोहम्मद साहब ने, ए लोगों को काफर करने से पहले अपने नफ्स को तो मुसलमान कर। तेरे नफ्स से बड़ा काफर कोई नहीं है जो तुझे बुराई की तरफ ले जा रहा है। तो मेरे भाइयों, एक हदीस का ये भी हदीस में आता है, कल्बुल इंसान बैतुल रहमान, इंसान का दिल खुदा का घर है। अब इस दिल को पाक करना है तो किसी अहले दिल के पास जाना पड़ेगा। अब इस दिल को पाक करना है तो पाक लोगों के पास जाना पड़ेगा, उनके पास जिनका दिल पाक हो चुका है। वो कौन है? अंबिया वन नबीयीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। ऐसे औलिया के पास जाए जिनका कल्ब जिंदा हो चुका है। जैसा हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, आप अपनी किताब अक्ल बेदार में इरशाद फरमाते हैं कि मैं बाहू सुल्तान को अल्लाह ने ये मर्तबा अता किया है, अब मैं किसी के दिल की तरफ तवज्जो कर दूं तो मेरी नीम नजर उसका दिल जिंदा कर देती है। बल्कि फरमाए, लोगों मेरी नीम नजर 1000 आफताबों से बेहतर है। अगर मैं किसी मुर्दा दिल पर नजर और तवज्जो कर दूं, अलफ अल्लाह चंबेदी बूटी मन विच मुर्शद लाई हूं, मैं उसका दिल अल्लाह के इसम से रोशन कर दूं, ऐसी बूटी लगा दूं उसके दिल पर, वो इसमें अल्लाह जात उसके दिल पर खुदा हो जाए, नक्श हो जाए और उसका कल्ब जिंदा हो जाए। और जिसका कल्ब जिंदा हो जाए फिर उसे मौत नहीं आती। ज़ाहरी जिस्म भी मर जाए मगर इसमें जात वाला दिल नहीं मरता। मेरे भाइयों, तो पहले अपनी पहचान कर लें कि ये खुदा का नायब है, इसका दिल खुदा का हर में खास है। फिर हम अंबिया और औलिया की शानों पर बहसें करते बड़े अच्छे लगेंगे। पहले अपनी तो शान का पता कर। अरे बंदे, तुझे क्या अल्लाह ने मुकाम अता फरमाया है? अरे तेरे लिए जमीन व आसमान अल्लाह ने बनाए हैं। ए हजरत इंसान, तेरे लिए इतना बड़ा सूरज हवा में अल्लाह ने खला में खड़ा कर दिया। तेरे लिए ये चांद और सितारे रोशनी के लिए बनाए। ए हजरत इंसान, तेरे लिए अल्लाह ने ये हवाएं चलाई, ये पानी, ये चरिंद परिंद, ये हर तरह की नेमतें अल्लाह ने तेरे लिए नाज़िल फरमाई हैं। हजरत इंसान, तू अपना मर्तबा तो जान ले कि तेरी शान व अजमत क्या है, कि तुझे फरिश्तों से ज्यादा बरतरी हासिल दी गई है। फरिश्ते तुझसे सवाल करें और तू उसका जवाब देता है। हदीस शरीफ में आता है, रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जब कोई अल्लाह का बंदा दीन के लिए, इसमें अल्लाह जात के लिए निकलता है, फरिश्ते अपने पर उसके पांव के नीचे कर देते हैं। अरे तेरा तो ये मर्तबा है कि फरिश्ते तेरा एहतराम करे। अले अल्लाह ने तुझे वो मुकाम अता फरमाया। मेरे भाइयों, आए किसी अल्लाह वाले के दर पर आए हजरत सुल्तान बाहू के दर पर आए। देखिए, अल्लाह वाले दिलों को पाक करने का दर्स देते हैं। लोग कहते हैं मुर्शद क्या देते हैं? अरे मुर्शद दिलों को पाक करते हैं, मुर्शद दिलों को इसमें अल्लाह ज़ात से मुनव्वर करते हैं। अरे जो कामल मुर्शद होना, वो तो नजर कर दें तो बंदे की कल्ब भी जिंदा, रूह भी जिंदा, मुकाम सिर्री खफी मख्फी अखफा सारे सातों लताइफ को वो बेदार कर देते हैं अगर मर्द कमाल की नजर उस पर पड़ जाए। अरे आइए तो सही किसी मर्द कमाल की बारगाह में। इकबाल कहते हैं न तख्तो ताज में न लश्कर और सिपा में है। अरे जो बात किसी मर्द कलंदर की बारगाह में है, वो मर्द कलंदर कौन है? अहले दिल लोग। और हजरत सुल्तान बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो तसव्वुफ के 10 बड़े इमामों में से एक इमाम है, दाता अली हजवेरी ने कश्फुल महजूब में लिखा है। आप फरमाते हैं दिल सोबत औलिया में जिंदा होते हैं
اور दिल दुनियादारों में बैठकर मुर्दा भी होते हैं। अब सोबत औलिया अल्लाह, ये मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने भी अपनी मसनवी शरीफ में लिखा है कि औलिया अल्लाह की सोबत मरीद के दिल को ताकत देती है, जिंदा करती है, और उसका दिल मरीद का अल्लाह अल्लाह करने लग जाता है। फिर जब दिल जिक्र करता है, दिल का ताल्लुक रूह से है, तो फिर रूह जिक्र करती है। जब रूह अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह फिर उसको मुकाम सिर्री, अल्लाह फिर उसको अपने राज अता फरमाता है। ये बंदे के अंदर के मुकाम बयान कर रहा हूं, कल्ब के साथ रूह का मुकाम, रूह के साथ सिर्री, सिर्री के साथ खफी, मख्फी, अखफा मुकाम आना। फिर अल्लाह ताला उस बंदे से हम कलाम होता है, उसको अपने राजो नियाज अता करता है। फिर अल्लाह उस बंदे का जिक्र जो कर रहा होता है, अल्लाह उसका खुद जाकर बन जाता है। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, मेरे बंदे तुम मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। फिर बंदा मज़कूर होता है, अल्लाह जाकिर बन जाता है। अरे बंदे, अल्लाह तेरा जिक्र आसमानों पर करता है। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे तू मुझे याद कर, मैं तुझसे बेहतर तुझे याद करूंगा। पर कब? जब तू मुझे दिल के जहान से मुझे याद करेगा, दिल की दुनिया को पाक करके मुझे याद करेगा। तो मेरे भाइयों, अपने दिलों को पाक करना है तो औलिया अल्लाह ने एक रास्ता बताया है, क्या? किसी अहले दिल के पास चले जाओ, किसी अल्लाह के वली के पास चले जाओ, किसी औलिया अल्लाह के पास चले जाओ। अल्लाह के एक वली हैं हजरत अबू अनीस सूफी मोहम्मद बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह। आप फरमाते हैं फकर की तालीम जुबान से नहीं दी जाती, बल्कि फकर की तालीम दिल ही दिल को देता है, और दिल ही दिल को पढ़ाता है, और दिल ही दिल को जिंदा करता है, और दिल ही दिल को पार ले जाता है। ये तो अहले दिल की बातें हैं, जिनका दिल खुदा के इसम से मुनव्वर हो गया हो और सारे जहान उसमें समा गए हों। जैसा हमारे सुल्तान बाहू ने फरमाया कि दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिला दिया जाने हु, विच्चे बेड़े विच्चे झेड़े, विच्चे वंज मोहाने हु, 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगू ताने हु। अरे फाजल सुट फजीलत बैठे या हजरत बाहू, ते ज्यादा दिल लगे ठिकाने हु। जब दिल ठिकाने लग गया, जब दिल अल्लाह अल्लाह करने लग गया, मेरे भाइयों आपकी तनकीद छूट जाएगी। किसी को काफिर नहीं करेंगे, अपने आप को दुरुस्त करेंगे। फिरकावारियत अच्छी नहीं लगेगी। जो बंदा अल्लाह का हो जाए वो किसी को बुरा नहीं कहता, जो बंदा अल्लाह का हो जाए वो किसी को काफिर काफिर नहीं करता, जो बंदा अल्लाह का हो जाए वो किसी को जहन्नमी और जन्नती नहीं करता, बल्कि वो तो अल्लाह की मोहब्बत से फुर्सत नहीं पाता। अरे वो अल्लाह के इश्क से फुर्सत नहीं पाता, अरे वो अल्लाह से बातों से फुर्सत नहीं पाता, अरे वो तो अल्लाह के मुशाहदे से फुर्सत नहीं पाता। अरे उसका दिन अल्लाह के दीदार में, अल्लाह के फकीर और अल्लाह के मुरीद, अल्लाह के जो खास बंदे हैं, अरे उनका दिन अल्लाह की याद में, अरे उनकी रातें मजलिस मुहम्मदी में, उनका दिन रात अपने मुर्शिद की दायमी हजूरी में रहता है। अरे जो अल्लाह के हो जाए, अल्लाह फिर उनका और वो अल्लाह के हो जाते हैं। कभी वो अल्लाह का जिक्र करते हैं, कभी अल्लाह उनका जिक्र करता है। अल्लाहू अकबर। अल्लाह वाले फिर इस मर्तबे पर पहुंच जाते हैं, कभी वो अल्लाह से जिक्र करे, कभी अल्लाह उनसे जिक्र करे, और कभी वो अल्लाह से बातें करे, और कभी अल्लाह उनसे बातें करे। हदीस में आता है नमाज अल्लाह से बात करने का नाम है, और फकीर वो है जो 24 घंटे अल्लाह की नमाज यानी कि उसमें उस खुदा से बात करता रहे, अल्लाह के कांटेक्ट में रहें, अल्लाह से राब्ते में रहें, अपने मुर्शिद से राब्ते में रहें। और मेरे भाइयों, दुनियादारी छोड़ो, किसी को काफिर और जहन्नमी ना करो, किसी को बुरा ना कहो। अरे करना है तो अपने आप को मुसलमान करो, अपने आप को मोमिन करो, अपने आप को वली करो, अपने आप को सालिहा बनाओ, अपनी पहचान हासिल करो। ये पहचान कब होगी? जब किसी पहचान वाले आरफ दरवेश की बारगाह में जाएंगे, फकीर की बारगाह में जाएंगे, किसी कामल मुर्शिद की बारगाह में जाएंगे, अरे किसी का लड़ पकड़ेंगे, अरे किसी के हो जाएंगे, वो आपको अल्लाह के होने का तरीका बताएगा।
क्योंकि वली कामल का आस्ताना या चौखट अल्लाह की चौखट बन चुकी होती है, क्योंकि वो अल्लाह की ज़ात में फना होते हैं और अल्लाह की ज़ात उनमें बका होती है। तो मेरे भाइयों, आइए अपनी पहचान हासिल करें, हमारे बयानात को बार बार सुने कि हजरत इंसान का ये मर्तबा है कि इसके दिल में खुदा ने अपना घर बनाया हुआ है। तो आइए उस ज़ाते परवरदिगार के इसमें ज़ात को अपने दिलों पर रोशन और मुनव्वर करते हैं और औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और औलिया अल्लाह के मुरीद होते हैं और सिलसिला तसव्वुफ को लेकर चलते हैं। अल्लाह हम सबको औलिया अल्लाह की मोहब्बत अता फरमाए और अपनी पहचान करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।